Good morning, students. Myself, Dr. Anirudh Kumar Abodh, Assistant Professor, Department of Zoology, HR College Amnod, JP University, Chapra. Today, we will study about structure and classification of amino acids. This topic is for BSc Part 1, Paper 2, Group B. लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल का बेसिक। आज उसी को कंसिडर करते हुए उसके रियल टॉपिक स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, एमिनो एसिड्स जो है बिल्डिंग एलिमेंट्स हैं प्रोटीन्स का। तो लेट्स स्टार्ट। सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट एमिनो एसिड्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जनरल स्ट्रक्चर है लेफ्ट साइड में एमिनो एसिड्स का, या आर ग्रुप एल्काइल ग्रुप, कार्बन atom, and this is the amino group left side, and right side is a carboxylic group, that is COOH. so ये एमिनो एसिड्स इसलिए है क्योंकि इसमें दो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। आर जो है एल्काइल ग्रुप है, और एमिनो एसिड्स को अल्फ़ा एमिनो एसिड्स भी कहते हैं क्योंकि अल्फ़ा कार्बन से ये फंक्शनल ग्रुप, एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों जुड़े होते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, ऊपर में हाइड्रोजन एटम, लेफ्ट साइड में अमीनो इंड है, राइट साइड में कार्बोक्सिलिक इंड है, और नीचे में आर ग्रुप है जो कि वेरिएंट है, यानी कि ये एल्काइल ग्रुप है। और यहीं पे जो एल्काइल ग्रुप डिफरेंट टाइप्स के होंगे जो अटैच होते जाएंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स बनते जाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे बॉडी में लगभग 20 एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स आर फाउंड इन द लिविंग बॉडी, and the structure of amino acids are depend on only the variant group, that is the R group, means alkyl group. So let's see in the introduction. Amino acids are a group of organic compounds containing two functional groups, amino and carboxyl group. फिगर में जैसा कि हम लोगों ने देखा कि एमिनो ग्रुप NH2 ग्रुप को कहते हैं ये, और लेफ्ट साइड में, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है COOH को कहते हैं। ये हमारा है एमिनो एसिड्स का जनरल स्ट्रक्चर, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दो फंक्शनल ग्रुप है, एक NH2 और एक COOH, और अराउंड 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स फाउंड इन प्रोटीन्स। सो प्रोटीन्स मेनली composed of these 20 types of amino acids. Now see classification of amino acids. Here we can see 5 categories. A, nutritional classification of amino acids, that means on the basis of nutrition. B, classification of amino acid based on polarity, polar group or unpolar group के accordingly. C, amino acid classified based on their
metabolic fat. The amino acids classification based on the structure and the E point, two main groups of amino acids. Now, nutritional classification of amino acids. So, on the basis of nutrition, amino acids are classified into basically two groups: essential or indispensable amino acid. Second one is non-essential or dispensable amino acids. Essential amino acids are those amino acids which can't be synthesized from our body and they must be obtained from the nutritional sources. And second one is non-essential amino acids that can synthesized inside our body. So हम देख रहे हैं एसेंशियल एमिनो एसिड्स में आएंगे आपको फिनाइल एलानिन, वैलिन, थ्रायोनिन, ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन, मेथायोनिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, leucine and lysine. Thing is that arginine may be synthesized inside the body. So especially for the case of arginine, sometimes we say that there are 10 types of essential amino acids and 10 types of non-essential amino acids. Few books refers that 9 type of essential amino acids and 11 type of non-essential amino acids. So non-essential amino acids में देखेंगे ग्लाइसिन है, एलानिन है, सेरीन है, सिस्टीन है, एस्पैराजीन है, ग्लूटामाइन है, एस्पार्टिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड, टायरोसिन और प्रोलिन है. So here we can see the amino acids which cannot be synthesized by the body and therefore need to be supplied through the diet is called essential amino acids. 10 amino acids come under this group: arginine, valine, histidine, isoleucine, leucine, lysine, methionine and phenylalanine, threonine or tryptophan. So these are the structures of essential amino acids. Arginine, first arginine, second lysine, third histidine, valine, leucine, isoleucine, methionine, threonine, phenylalanine और ट्रिप्टोफैन. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्काइल ग्रुप्स लिंक्ड हैं अल्फा कार्बन एटम्स ऑफ एमिनो एसिड से. आर्जिनिन, लाइसिन, हिस्टिडीन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मेथायोनिन, थ्रायोनिन और फेनिलैलानिन, ट्रिप्टोफैन, जो यहाँ पे बॉक्स में जो ब्लू कलर से स्ट्रक्चर बनाए गए हैं ये सारे एल्काइल ग्रुप्स हैं, यानी आर ग्रुप से अटैच्ड हैं. आर ग्रुप को रिप्लेस्ड किए हुए हैं, एल्काइल को रिप्लेस्ड किए हुए हैं. सो these are the structures of essential amino acids.
Non-essential amino acids. The body can synthesize about 10 essential amino acids to meet the biological needs. Hence, they need not be consumed in the diet. मीन्स हमारा बॉडी 10 एमिनो एसिड्स को बना लेता है जिसे हमें बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि डाइट में लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे एमिनो एसिड्स हैं ग्लाइसिन, एलानिन, सेरीन, सिस्टीन, एस्पार्टेट यानी एस्पार्टिक एसिड, एस्पैराजिन, ग्लूटामेट यानी ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन, टायरोसिन एंड प्रोलिन। So these are the structures of non-essential amino acids. ग्लाइसिन, जहाँ पे हम देख रहे हैं बॉक्स में एल्काइल के जगह पर H एटम रिप्लेस्ड है। एलानिन, जहाँ पे आप देख रहे हैं CH2 ग्रुप है। यहाँ पे सेरीन का ये ग्रुप बॉक्स जो है CH2OH एल्काइल को रिप्लेस्ड किया है। सिस्टीन, CH2SH, उसी तरह से एस्पार्टिक एसिड, एस्पैराजीन, ग्लूटामेट, ग्लूटामाइन, और नीचे में आप देख रहे हैं टायरोसिन और प्रोलिन। बी पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स बेस्ड ऑन पोलरिटी। फर्स्ट, नॉन पोलर एमिनो एसिड्स विथ एलिफैटिक आर ग्रुप, यानी कि आर ग्रुप जो यहाँ अटैच्ड होगा वो एलिफैटिक होगा, कोई पोलरिटी नहीं होगा। सेकेंड, नॉन पोलर एमिनो एसिड्स विथ एरोमेटिक आर ग्रुप, कोई पोलरिटी नहीं होगा यहाँ भी, लेकिन आर ग्रुप यहाँ एरोमेटिक होंगे। थर्ड है पोलर एमिनो एसिड्स विथ नो चार्ज ऑन आर ग्रुप, यानी तीसरा जो है वो पोलर एमिनो एसिड्स का ग्रुप है लेकिन यहाँ पे आर ग्रुप पे कोई चार्ज नहीं होगा। फोर्थ, नॉन पोलर एमिनो एसिड्स विथ नेगेटिव आर ग्रुप, जहाँ पे पोलर एमिनो एसिड्स विथ नेगेटिव आर ग्रुप, जहाँ पे आर ग्रुप जो होगा वो नेगेटिव होगा और एमिनो एसिड्स पोलर होंगे। फिफ्थ है पोलर एमिनो एसिड्स विथ पॉजिटिव आर ग्रुप, जहाँ पे आर ग्रुप जो होगा वो पॉजिटिव होगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ पोलरिटी एमिनो एसिड्स आर क्लासिफाइड इन फॉलोइंग 5 ग्रुप्स। सो नॉन पोलर एमिनो एसिड्स विथ एलिफैटिक आर ग्रुप, जिसके एग्जाम्पल्स हैं एलानिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, वेलिन, मिथायोनिन और ग्लाइसिन। नॉन पोलर एमिनो एसिड्स जहाँ पे आर ग्रुप एरोमेटिक है उसका एग्जाम्पल है फेनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन। पोलर एमिनो एसिड्स विथ नो चार्ज ऑन आर ग्रुप, इसके एग्जाम्पल हैं प्रोलीन, सेरीन, थ्रायोनिन, सिस्टीन, ग्लूटामाइन एंड एस्पैराजीन। उसी तरह से पोलर एमिनो एसिड्स विथ नेगेटिव आर ग्रुप का एग्जाम्पल है एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, जिसे हम लोग डाइकार्बोक्सिलिक मोनो एसिड भी कहते हैं। नेक्स्ट है पोलर एमिनो एसिड विथ पॉजिटिव आर ग्रुप, जिसमें 3 एमिनो एसिड्स आते हैं लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। एमिनो एसिड्स क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर मेटाबॉलिक फैट। तो इसमें 3 तरह के एमिनो एसिड्स हैं। ग्लाइकोजेनिक एमिनो एसिड्स जो ग्लाइकोजेनेसिस के लिए ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए प्रिकर्सर्स होते हैं, और दूसरा है कीटोजेनिक एमिनो एसिड्स जो कि ब्रेकडाउन्स करते हैं कीटोन बॉडीज़ का, और थर्ड है ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक एमिनो एसिड्स बोथ। तो ग्लाइकोजेनिक एमिनो एसिड्स में आएंगे एलानिन, एस्पार्टेट यानी एस्पार्टिक एसिड,
ग्लाइसिन, मिथायोनिन। कीटोजेनिक एमिनो एसिड्स में आएंगे ल्यूसीन और लाइसिन। थर्ड है ग्लाइकोजेनिक एंड कीटोजेनिक एमिनो एसिड्स, बोथ ग्रुप है, जिसमें 4 एमिनो एसिड्स आते हैं, आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन और ये जो हैं वो प्रिकर्सर्स हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज एज वेल एज फैट। नेक्स्ट है एमिनो एसिड्स क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। फर्स्ट है एमिनो एसिड्स विथ एलिफैटिक साइड चेन। सेकेंड है हाइड्रोक्सिल ग्रुप कॉन्टेनिंग एमिनो एसिड्स। थर्ड है सल्फर कॉन्टेनिंग एमिनो एसिड्स। फोर्थ है एसिडिक एमिनो एसिड्स एंड देयर अमाइड्स। 5 है बेसिक एमिनो एसिड्स। 6 है एरोमेटिक एमिनो एसिड्स और 7 है इम्यूनो एमिनो एसिड्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो कि एमिनो एसिड्स का नाम है, सिंबल है, स्ट्रक्चर है। 3 लेटर्स का सिंबल है, 1 लेटर सिंबल है, जैसे ग्लाइसिन है, एलानिन है, वैलिन है, जिनका एलिफैटिक साइड चेन होता है। दूसरा सल्फर कॉन्टेनिंग एमिनो एसिड्स में सिस्टीन है, मिथायोनिन है, जिसमें ब्लू बॉक्स में हम देख रहे हैं साइड में, यहाँ पे सल्फर कॉन्टेनिंग है, यहाँ पे भी सल्फर है। तीसरा है एसिडिक है, जहाँ पे हम देख रहे हैं COOH ग्रुप है, बॉक्स में बना हुआ है, एस्पार्टिक एसिड इसका एग्जाम्पल है, और नीचे में हम देख रहे हैं एस्पैराजीन है। एसिड ग्रुप में ही ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामाइन आप देख रहे हैं। उसके बाद बेसिक एमिनो एसिड में नीचे लाइसिन और आर्जिनिन है, जहाँ पर बॉक्स में ब्लू कलर से हम देख रहे हैं NH ग्रुप, एक्स्ट्रा NH ग्रुप जुड़ा हुआ है। बेसिक का नेक्स्ट एग्जाम्पल हिस्टिडीन है। उसी तरह से नीचे में एरोमेटिक एमिनो एसिड्स हैं, इसमें फिनाइल एलानिन है, टायरोसिन है, ट्रिप्टोफैन है, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बॉक्स में जो बनाया गया है ब्लू कलर से जो है वो एरोमेटिक फंक्शनल ग्रुप है। रिंग शेप देख रहे हैं हम लोग, अल्टरनेट डबल बॉन्ड इसमें भी देख रहे हैं, तो ये एरोमेटिक एमिनो एसिड्स हो गए। लास्ट वन इम्यूनो एसिड, जो कि प्रोलीन है। प्रोलीन का स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। प्रोलीन का 3 लेटर्स होता है, PRO होता है, 1 लेटर P होता है। नाउ वी कैन सी प्रॉपर्टीज ऑफ एमिनो एसिड्स। Amino acids differ in their physiochemical properties which determine the characteristics of protein। तो हम दोनों देख लेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। सॉलिबिलिटी, सो मैक्सिमम एमिनो एसिड्स जो हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट इनसॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। और एमिनो एसिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है जनरली हायर होता है, लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो मेल्ट करते हैं। टेस्ट में ये स्वीट हो सकते हैं, जैसे ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन टेस्टलेस हो सकते हैं, ल्यूसीन बीटर हो सकता है, आर्जिनिन आइसोल्यूसिन। Optical properties, all amino acids except glycine possess optical isomers due to presence of asymmetrical carbon atom। Chemical properties, color reactions of amino acids, reactions xanthoprotic reaction, कलर येलो है। बेंजीन रिंग ऑफ एरोमेटिक एमिनो एसिड, जिसमें फिनाइल एलानिन और ट्रिप्टोफैन ट्रायोसिन है। मिलियंस रिएक्शन शो करता है, फेनोलिक ग्रुप, कलर रेड। हॉपकिंस कॉल रिएक्शन, कलर पर्पल।
साकागुची रिएक्शन जो रेड कलर, नाइट्रोपेंसिल रिएक्शन जो ब्राइट रेड है, और पॉलिश टेस्ट जो कि रेड होता है। हम लोग कंक्लूजन देख लें। सो कंक्लूजन, amino acids are at the basis of all life processes as they are absolutely essential for every metabolic process. Among their most important tasks are the optimal transport and optimal storage of all nutrients. The majority of diseases such as obesity, high cholesterol levels, diabetes, insomnia, erectile dysfunction, or arthritis can essentially be traced back to metabolic disturbance. This also applies to hair loss and serious case of wrinkle formation. The positive effects of amino acids on arthritis, osteoporosis, cholesterol, diabetes, fat burning, healthy skin, hair loss, sleep, mind swings, and परफॉर्मेंस। सो ये थे एमिनो एसिड्स के क्लास, जिसमें हम लोगों ने एमिनो एसिड्स के स्ट्रक्चर और उसकी क्लासिफिकेशन, उसके प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा। थैंक यू ऑल।